Good morning, students. First passage is Nushu, a secret language. First to fifth are headings. देखो section A. The answer for first is third, birth and development. इस language दी birth and development. देखो here. Sometime between 400 and 1000 years ago, women defined the patriarchal norms of the time that forbade them to read or write and conceived of Nushu, literally women's language, a secretive script and language of their own. मतलब इत्थे इस चीज ये जड़ी language सी दा की होया birth होया ठीक है लाइक उन्होंने ये आइडिया आया कि वो रीड और राइट करना चाहती ने तो उन्होंने किया लैंग्वेज बनाई नूशू ठीक है दैट मीन्स इट्स बर्थ ठीक है थ्रू बिल्डिंग फॉर्मल नेटवर्क्स ऑफ स्वान सिस्टर्स हु कमिटेड देमसेल्व्स टू टीचिंग द लैंग्वेज ओनली टू अदर वुमेन एंड बाय यूजिंग इट आर्टिस्टिकली ठीक है मतलब उन्होंने इनू यूज़ किया नूशू वाज एबल टू ग्रो एंड स्प्रेड ठीक है दैट इट मीनस ये की हुई डेवलपमेंट हुई सो द आंसर फॉर फर्स्ट इज थर्ड बर्थ एंड डेवलपमेंट सेकेंड देखो सेक्शन बी इसका आंसर है सेवंथ characteristics of written Nushu ਉਹਦੀਆਂ characteristics Nushu has many orthographical distinctions from the standard Chinese script whereas standard Chinese has large bold strokes कि standard Chinese च large bold strokes ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ठीक है but ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੇ thick permanent and Nushu characters are thin slanted and have a slightly scratchy appearance ठीक है then ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਇਆ each character represents a sound ठीक है then मतलब ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ written Nushu ਦੇ different characteristics ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ so the answer is characteristics of written Nushu third है section C ਇਹਦਾ answer है fifth the social rule of Nushu social rule देखो इत्थे Nushu was developed as a way to allow women to communicate करना socialize करना ठीक है Nushu की सी कैसा तरीका सी जिहदे नाल women की कर सकदियां सी communicate कर सकदियां सी ठीक है then सारे पैराग्राफ च उसी चीज़ की गल हो रही है कि किद्दां लाइक उन्होंने इसनू एज अ टूल यूज़ किया सो दैट कि वो कर सकन गल कर सकन ठीक है so the answer for it is the social role of Nushu fourth ਦਾ देखो section D ਦਾ answer है second decline and disuse ਇਹਦਾ decline and ਇਹਦਾ disuse ठीक है देखो after Chinese the revolution more women were encouraged to become literate in the standard Chinese script कहते more women ਨੂੰ encourage ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि तुसी standard Chinese script use करो instead of this Nushu ठीक है एंड मच ऑफ द नीड फॉर अ स्पैशल फॉर्म ऑफ वुमेन्स कम्युनिकेशन वाज डैम्पर्ड कि जी वुमेन की नीड सी कोई स्पैशल कम्युनिकेशन वास्ते जिस वास्ते उन्होंने नूशू लैंग्वेज बनाई सी फिर वो नीड की होगी डैम्पन होगी खत्म होगी लो होगी ठीक है बिकॉज उन्होंने की किया जा रहा है एनकरेज किया जा रहा है कि स्टैंडर्ड चाइनीज सीख लैन दैट मीनस की है जी नूशू लैंग्वेज से डिक्लाइन किया गया ठीक है सो द आंसर फॉर इट इज़ डिक्लाइन एंड डिसयूज ठीक है भी दैन मतलब इनू डिसयूज किया सीगा लोगों ने ठीक है भी उन्होंने समझा जाता सीगा the general chains of linguistic transmission were broken and the language ceased being passed on through swan sisters कि ना आगे language pass on भी नहीं हुई ठीक है ऐदा so the answer is second फिफ्थ देखो सेक्शन ई दा आंसर है एट्थ रिवाइवल एंड कंटैंपरेरी इंटरस्ट ये लैंग्वेज का रिवाइवल दोबारा लाइक इन्हें बर्थ रहा तो कंटैंपरेरी एट प्रेजेंट कितना कि इंटरस्ट है In recent years, however, popular and scholarly interest in Nushu has blossomed. दोबारा इस इंटरस्ट की हो गया blossom हो रहा रिवाइव हो रहा है ठीक है सो दैन मतलब कंटैंपरेरी कितना की इंटरस्ट है ठीक है दैन ਇਹਦਾ मतलब रिवाइवल वगैरह वो सारा दस्या हुआ है तो आंसर फॉर ई इज़ रिवाइवल एंड कंटैंपरेरी इंटरस्ट नैक्सट देखो 6th and 7th Nushu why was there a need for Nushu ਇਹਦੇ दो ऑप्शंस लगाने आ ठीक है जी देखो ਇਹਦਾ आंसर है बी एंड डी इट इज़ अ वे फॉर अनएजुकेटेड वुमेन टू रीड एंड राइट ठीक है ਜਿਹੜੀਆਂ वुमेन ਨੂੰ नहीं हैगी एजुकेशन ਉਹਨਾਂ वास्ते वे है टू की टू रीड एंड राइट देखो Nushu was the women were rarely encouraged to become literate कहते women ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੀ encourage ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ भी literate हो जाओ that means maximum women ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ illiterate ਤੇ Nushu provided a practical and easy to learn alternative Nushu ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ practical ਤੇ easy to learn ਕੀ ਦਿੱਤਾ alternative ਦਿੱਤਾ ठीक है that means the answer B it was a way for uneducated women to read and write ठीक है दैन देखो ऑप्शन डी इट वॉज अ वे फॉर वुमेन टू कॉरेस्पॉन्ड विदाउट मैन नोइंग कि एक दूसरे नाल लाइक की कर लेना गल भी कर लेना तो की करना मैन नू पता भी ना लगे ठीक है देखो इसका आंसर नूशू कैरेक्टर्स वर पेंटेड और एम्ब्रॉयडर्ड कि वो पेंट या एम्ब्रॉयड किए जाते थे ऑन टू एवरीडे आइटम्स लाइक फैनस पिलो केसिस एंड हैंकरचीफ्स लाइक रोज़मर्रा दी चीज़ों उत्ते उन्होंने की किया जाता सी पेंट या एम्ब्रॉयड किया जाता सी सो दैट मैन तो वो की कर सकन अवॉइड
ताकि मैनू उन्होंने कोई शक ना करन, उन्होंने पता ना लगे कि हाँ ये गल्लां कर रही ने या नहीं, ठीक है। सो द आंसर इट वॉज अ वे फॉर वुमेन टू कॉरस्पॉन्ड विदाउट मैन नोइंग, मैन के बिना पता लगे ही कि कर लेंदे सी आपस च कम्यूनीकेट, ठीक है। दैन देखो 8th to 13 दीज आर ट्रू फॉल्स। 8th देखो द पोस्ट रेवोल्यूशन गवर्नमेंट डिड नॉट वॉन्ट वुमेन टू रीड और राइट इन एनी लैंग्वेज, कहते जी पोस्ट रेवोल्यूशन गवर्नमेंट से नहीं चाहती सी वुमेन को रीड और राइट कर सकन। द आंसर इज फॉल्स एंड इट्स इन योर पैराग्राफ डी। द वेरी फर्स्ट लाइन आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन मोर वुमेन वर एनकरेज टू बिकम लिटरेट, इत्थे तो कह रहे हैं कि मोर वुमेन को एनकरेज किया जाता सी कि तुसी लिटरेट हो जाओ, बट क्वेश्चन च कह रहे हैं कि उन्होंने की किया जाता सी, वो चाहते ही नहीं सी कि वुमेन लिटरेट हो, पढ़ लिख सकन, ठीक है। सो द आंसर इज क्लीयरली फॉल्स। 9th एट फर्स्ट द रैड गार्ड थॉट नूशू माइट बी अ टूल फॉर स्पाइस, कहते जो रैड गार्ड से उन्होंने लग्या कि नूशू की है स्पाइस जोड़े जासूस होंगे ने उन्होंने एक टूल होगा। द आंसर इज ट्रू एंड इट्स ऑल्सो इन योर पैराग्राफ डी। वैन द रैड गार्ड डिस्कवर्ड the script in the 1960s they thought it to be a code used for espionage, कहते जो रैड गार्ड ने इस स्क्रिप्ट को 1960 डिस्कवर किया तो उन्होंने की लग्या कि जड़ा है कोड है किन्हों वालों किस लिए यूज़ किया जाता है, एस्पाइनेज लई, ठीक है, जासूसी करन लई, ठीक है। सो इत्थे भी सेम गल कह रहे हैं, क्वेश्चन भी सेम गल कह रहे हैं कि माइट बी अ टूल फॉर स्पाइस, और इत्थे कह रहे हैं एस्पाइनेज, ठीक है, वही करना स्पाइस जो काम करते हैं एस्पाइनेज, ठीक है। सो द आंसर फॉर 9th इज ट्रू। 10th is not given। 11th देखो द कस्टमरी वे ऑफ लर्निंग नूशू हैज़ डाइड आउट, कहते इनू लर्न करने की कस्टमरी रवायती जड़ा तरीका है वो की है, डाई आउट हो चुका है। द आंसर इज ट्रू। सी इन योर पैराग्राफ डी। देयर इज़ नो लॉन्गर एनी वन अलाइव हू हैज़ लर्नट नूशू इन द ट्रडिशनल मैनर, कहते हुण कोई भी दुनिया ते ऐसा नहीं जिन्हें नूशू नूं ट्रडिशनल कस्टमरी या रवायती तरीके नाल सिक्ख्या होवे, ठीक है। दैट मीनस ये तरीका की है, डाई आउट हो चुका है। सो द आंसर फॉर 11th इज ट्रू। 12th इज़ नॉट गिवन। 13th देखो नूशू इज़ बीइंग नाउ ओपनली टॉट, कहते जड़ा है हुण वधिया ओपनली पढ़ाया जा रहा है। द आंसर इज ट्रू। देखो इन योर पैराग्राफ ई द इन्वेस्टर फ्रॉम हांगकॉन्ग SAR is also being to use infrastructure at potential tourist sites in Hunan and some schools in the area have begun instruction in the language, कुछ स्कूल्स ते भी स्कूल्स विच भी लैंग्वेज पढ़ाई जान लग गया, ठीक है। सो दैट मीनस ये कि हुण ओपनली पढ़ाई जा रही है, ठीक है। सो द आंसर फॉर 13th इज ट्रू। आ जाओ नैक्सट पैसेज ते देखो क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th है 14th to 19th ने इंफॉर्मेशन वाले। देखो 14th है एन ओवरव्यू ऑफ हाउ द फ्लाई ट्रैप ईट्स इट्स प्रे, कि एक ओवरव्यू दिता गया कि जो फ्लाई ट्रैप है अपनी प्रे नूं अपने शिकार नूं किद्दां खांदा है। द आंसर इज पैराग्राफ डी। देखो इत्थे पैराग्राफ डी विच द ट्रैप सिक्रीट्स जोड़ा वीनस फ्लाई ट्रैप है वो दस्या होया, कहते द ट्रैप सिक्रीट्स एसिडिक digestive juices that dissolve the soft tissue and cell membranes of the insect. These juices also kill any bacteria that have entered with the food, ठीक है। दैन सारा एक ओवरव्यू जी दी हुई है कि जो है ना कोई इंसैक्ट आता फिर पहला एसिडिक एंजाइम्स रिलीज होंगे ने, दैन ये दैन वो, ठीक है। आफ्टर दैट सारी प्रोसेस दसी हुई है। सो द आंसर ऑफ 14th इज डी। 15th देखो कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन एंड प्लांट बिहेवियर, ह्यूमन ते प्लांट बिहेवियर च कंपैरिजन किया होया। द आंसर इज पैराग्राफ बी। देखो botanists are believed to have seen a parallel between the behavior of the plant in luring and devouring insects, कहते बॉटनिस्ट ने एक पैरल देखा, एक समानता देखी किस चीज़ च, बिहेवियर प्लांट का किस चीज़ च, ल्योर करना अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इंसैक्ट्स नो, ठीक है। अपने भी वो जो प्लांट्स ने अपनी तरफ कितना इंसैक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इमेजिन द बिहेवियर ऑफ विमेन इन ल्योरिंग एंड ट्रैपिंग विटलैस मैन, कि जड़ियाँ विमेन ने वो है ना ल्योर करदियां ने, अट्रैक्ट करदियां ने, ट्रैप करदियां ने किहड़े विटलैस बेवकूफ मैन नूं, ठीक है। सो द आंसर इत्थे भी क्वेश्चन भी कह रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन एंड प्लांट बिहेवियर, इत्थे भी ह्यूमन वुमन प्लांट इत्थे है उन्होंने दोनों के बिहेवियर की किया गया, कंपैरिजन किया गया। सो द आंसर फॉर 15th इज बी। 16 देखो अ मेजर डिजाइंड टू प्रिजर्व फ्लाई ट्रैप्स इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा मेजर जो डिजाइन किया गया सो दैट जड़ियाँ फ्लाइज ने अपने नेटिव एनवायरनमेंट की रह सकन, प्रिजर्व रह सकन। द आंसर इज एफ। देखो the draining and destruction of natural wetlands where the flytrap lives is considered to be the biggest threat to its existence as well as people removing the plants from their natural habitat, ठीक है। तो प्यूनिटिव मैजर्स हैव बीन, कहते जोड़े वैटलैंड्स ने जिथे फ्लाई ट्रैप्स रहिंदियां ने वो बिगेस्ट थ्रेट टू इट्स एग्जिस्टेंस बन चुकियां ने, उन्होंने भी फ्लाई ट्रैप्स लिए तो लोगों भी जोड़े उत्थे प्लांट्स नूं रिमूव करी जा रहे हैं,
ठीक है। सो की किया जा रहा, प्यूनिटिव मैजर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, मैजर्स की ने इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग दिस, ताकि लोग ना कर सकन, उन्होंने प्लांट्स वगैरह ना पट्टन। सो डायरैक्टली की गल मतलब निकलता था कि जड़ियाँ फ्लाई ट्रैप्स ने की रहन प्रिजर्वड रहन। ठीक है। सो द आंसर इज एफ। 17 देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिस्टिक और कल्चरल पोर्ट्रेयल ऑफ मीट ईटिंग प्लांट्स, एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेयल किया गया मीट ईटिंग प्लांट्स। द आंसर इज ए। From indigenous myths to John Wyndham's Day of the Triffids and off-Broadway musical Little Shop of Horrors, the idea of cerebral carnivorous flora have spooked audiences and readers for centuries. कहते इंडिजीनियस मिथ्स टू जॉन विथम्स डे ऑफ ट्रिफिड्स तो लैके, ठीक है, ऑफ ब्रॉडवे म्यूजिक लिटल शॉप्स, ठीक है, मतलब सारी की आ गया कल्चरल या कह दिया आर्टिस्टिक चीज़ा आ गया ना, म्यूजिकल एंड ऑल। ठीक है, भी जो आइडिया है सैरेबलर कार्नीवोरस फ्लोरा, कार्नीवोरस मतलब जो एनीमल्स नू खाते हैं, दैट मीनस नॉन वेजिटेरियन या मीट ईटिंग फ्लोरा मीनस फ्लावर्स या पौधे। ठीक है, तो की मीट ईटिंग प्लांट्स की ने इन्होंने की किया कल्चरल तो इन्हों का आर्टिस्टिक पोर्ट्रेयल हुआ है कितने होया इंडिजीनियस मिथ्स च, इधर डे ऑफ ट्रिफिड्स च, ब्रॉडवे म्यूजिक लिटिल शॉप ऑफ हॉरर्स विच। ठीक है। सो द आंसर फॉर 17th इज ए। 18th, a characteristic of Venus flytrap that is exceptional in the botanical world, एक ऐसी characteristic जड़ी की है botanical world च exceptional। the answer is E। देखो, one of the plant's curious feature is resilience to flame, that it's resilient to flame मतलब इनू अग कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, the answer is सो ई। इत्थे ही एक एक्सैप्शनल यदि वो है क्यूरीअस फीचर है एक्सैप्शनल की है फ्लेम नू की है रेजिलिएंट है, फ्लेम कुछ नहीं कह सकती। ठीक है। सो द आंसर फॉर 18th इज ई। 19 देखो, अ रेफरेंस टू एन एस्पेक्ट ऑफ द वीनस फ्लाईट्रैप्स बायोलॉजी दैट इज नॉट फुली अंडरस्टूड। ठीक है, वीनस फ्लाईट्रैप का एक ऐसा एस्पैक्ट जोड़ा बायोलॉजिकल वीनस फ्लाईट्रैप की बायोलॉजी च एक ऐसा एस्पैक्ट जोड़ा अज तक फुली नहीं समझा गया। ठीक है, द आंसर इज इन पैराग्राफ सी। देखो, द प्लांट हैज़ नो नर्वस सिस्टम। ठीक है, प्लांट च नर्वस सिस्टम ही है नहीं कोई। एंड रिसर्चर्स कैन ओनली हिपोथेसाइज एज टू हाउ द रैपिड शटिंग मूवमेंट वर्क्स, कहते कि इस कोई नर्वस सिस्टम तो है नहीं, कहते फिर मतलब ये हाले तक रिसर्चर्स इस चीज़ को सिर्फ हाइपोथेसाइज कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एक गैस वर्क ही कर सकते हैं कि सिर्फ एक रिटर्न च दे सकते हैं कि हाँ भी मतलब ये रैपिड शटिंग मूवमेंट किद्दां हुंदी है, पर यह नहीं दस सकते कि क्यों होंगी है। ठीक है, दैट मीनस ये कि एक बहुत ही यदा ऐसा फीचर है बायोलॉजी का जोड़ा कि कोई भी नहीं अंडरस्टूड कर पाया अज तक। ठीक है, then 20 question, they if they are too small to provide a dash, the closing pod allows insect to get out। कहते अगर इंसैक्ट बहुत इन्ना छोटा है कि वो अपन की समथिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो जो पॉड है क्लोजिंग पॉड है जो वीनस फ्लाईट्रैप जी अपने इंसैक्ट्स को कैद करता, कहते वो इंसैक्ट को बाहर जान देता। द आंसर इज यूजफुल नरिशमेंट। देखो, द पॉड शट्स क्विकली बट डज नॉट सील इंटायरली एट फर्स्ट, कहते जो पॉड है वो हैगा जो कैप्चरिंग जा पार्ट वो क्विकली बंद तो हो जाता पहला। ठीक है, बट कहते ये देखा जाता है कि ये माइनस क्यूल बहुत छोटे इंसैक्ट्स को की कर देता है, स्केप करना लो कर देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने की नहीं मिलूगी, उस यूजफुल नरिशमेंट नहीं होगी। ठीक है, दैट मीनस उन्होंने इंसैक्ट्स को बाहर जान देता जिन्हें की नहीं हैगी यूजफुल नरिशमेंट। ठीक है, सो द आंसर फॉर 20th इज यूजफुल नरिशमेंट। 21st देखो, ओनली द डैश इज लैफ्ट आफ्टर द फ्लाई ट्रैप हैज़ फिनिश्ड डाइजेस्टिंग एन इंसैक्ट, कहते सिर्फ ये चीज़ बचती है जो फ्लाई ट्रैप ने उस इंसैक्ट को डाइजेस्ट करना खत्म करता। द आंसर इज एक्सोस्केलेटन। देखो, इन योर पैराग्राफ डी, वंस द प्लांट हैज़ रीअब्जॉर्ब्ड एंड द डाइजेस्टिव फ्लूइड। ठीक है, कहते जो प्लांट ने उस डाइजेस्टिव फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब कर लिया, मतलब जो सारी वो डाइजेशन प्रोसैस कंप्लीट होगी, द ट्रैप रीओपन्स, जो पॉड है खुल जाता है, एंड द एक्सोस्केलेटन ब्लोज अवे इन विंड, जो सिर्फ एक एक्सोस्केलेटन बचा वो भी हवा उड़ा के ले जाती है। ठीक है, सो द आंसर फॉर 21st इज एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इतने भी सेम पूछ रहे हैं भी सिर्फ ये चीज़ बचती है जो उन्हें डाइजेशन खत्म कर ली, की बच रहा सिर्फ एक्सोस्केलेटन। 22nd, मैनी प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन बॉग्स एंड वेटलैंड्स ओइंग टू द लैक ऑफ डैश, कहते बहुत सारे ऐसे प्लांट्स ने जो बॉग्स एंड वेटलैंड्स नहीं सर्वाइव कर सकते बिकॉज उत्थे एक चीज़ की कमी है। की कमी किस चीज़ की? नाइट्रोजन की। द आंसर इज नाइट्रोजन। इट्स इन योर पैराग्राफ ई। इट थ्राइव्स इन बॉग्स, मार्शेस एंड वेटलैंड्स, grows in wet sand and peaty soils. Because these environments are so depleted in nitrogen, they asphyxiate other flora, but the flytrap overcomes its nutritional poverty by sourcing protein from its insect prey।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾफ़ी प्लांट्स ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀਨਸ ਫਲਾਈਟ੍ਰੈਪ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਰ ਪਲਾਂਟਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀਸ ਪਲੇਸਿਸ ਆਰ ਡੈਪਲੀਟਡ ਇਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਕ ਹੈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 23rd ਦੇਖੋ ਦ ਵੀਨਸ ਫਲਾਈਟ੍ਰੈਪ ਕੈਨ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਸਮ ਐਕਸਪੋਜਰ ਟੂ ਫਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਨਸ ਫਲਾਈਟ੍ਰੈਪ ਆ ਉਹ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜਰ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਨਸ ਫਲਾਈਟ੍ਰੈਪ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਹੈ ਇਨ ਯਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਟੂ ਫਲੇਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ 24th is not given 25th only 35,800 Venus flytraps now survive in their natural habitats ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 35,800 flytraps ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ now at present ਠੀਕ ਹੈ the answer is false and it's in your paragraph F ਦੇਖੋ in the last survey only 35,800 flytraps were found remaining in the wild ਕਹਿੰਦੇ only ਇੰਨੇ flytraps ਜਦੋਂ last survey ਹੋਇਆ only ਇੰਨੇ flytraps ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ and thus some prominent conservationists have suggested the plant be given the status of vulnerable ਕਿ ਇਹਨੂੰ vulnerable ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ since this research is considerably dated ਹੈ ਬਹੁਤ dated research ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ having taken place in 1992 'ਚ research ਹੋਈ ਸੀਗੀ so the present number is considerably lower ਕਿ presently ਤਾਂ number ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੰਟਲੀ 35,800 ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆ presently ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ so the answer is false 26 ਦੇਖੋ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਦ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਵੀਨਸ ਫਲਾਈਟ੍ਰੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਨਸ ਫਲਾਈਟ੍ਰੈਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨ ਯਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਫ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦ ਡਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਬਿਗੇਸਟ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਇਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੀਏਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦ ਪਲਾਂਟਸ ਫਰੋਮ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬੀਟੇਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर 26 ਇਜ਼ ਟਰੂ ਆ ਜਾਓ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ growth model then ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 dash was the main goal ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ A to F ਕਰ ਲਓ ਮਾਰਕ then ਦੇਖੋ 27th ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ A ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੇਨ ਗੋਲ ਸੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖੋ planners at this stage were primarily concerned with industrial development primarily ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਨ ਗੋਲ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 28th ਦੇਖੋ ਟਾਈਪੀਫਾਈਡ ਬਾਈ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਏਡ ਸਚ ਐਜ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਇਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ economic growth ਕਹਿੰਦੇ these assumptions were revealed however when poverty rates and economic growth found to rise simultaneously in many countries ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸੀ ਕਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ small scale aid such as health and economic growth then ਦੇਖੋ 29th poverty seen as an inability to reach dash poverty ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ inability to reach dash the answer is literacy ਠੀਕ ਹੈ It was hoped that through provision of services such as community sanitation literacy programs poverty could be eliminated ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਵਰਟੀ ਕਦੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜੂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਉਹ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਟਰੇਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪੋਵਰਟੀ ਕੁਡ ਬੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟਡ ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਲਿਟਰੇਸੀ 30th ਦੇਖੋ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ देयर ओन ਡੈਸ਼ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ देयर अटेन फुल ह्यूमन पोटेंशियल की करन अपना हम ह्यूमन पोटेंशियल करन अटेन करन आइडेंटिफाई करन ठीक है सो द आंसर फॉर 30th इज ह्यूमन पोटेंशियल 31st देखो इट वॉज डिस्कवर्ड दैट पॉवर्टी कुड इंक्रीज इन स्टैप विद पॉवर्टी किस चीज़ नाल की हो सकती सी इंक्रीज हो सकती सी द आंसर इज रिसोर्स इंटेंसिव देखो इत्थे लिखा होया resource intensive that entailed continuous management and funding ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ continuous management ਤੇ funding ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲਾਈਕ ਉਹਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਟੈਂਸਿਵ 32nd ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਾਸਟਲੀ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ongoing development
द आंसर इज पॉवर्टी इंडिकेटर। देखो पॉवर्टी इंडिकेटर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द मल्टी फेसेट्स ऑफ देयर ओन डेप्रीवेशन। खुद ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਲਾइक ਇੰਨੇ ਕਾਸਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪॉवर्टी इंडिकेटर्स की कर रहे हैं अपने मल्टी फेसेट्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ अपनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने मल्टी फेसेट्स फॉर देयर ऑफ देयर डेप्रीवेशन। सो द आंसर इज पॉवर्टी इंडिकेटर। 33rd देखो द प्रॉब्लम ऑफ डैश नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड। किस चीज़ की प्रॉब्लम प्रॉपरली एड्रेस नहीं हुई? द आंसर इज क्लाइमेट चेंज। देखो अप्रोच हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर लैकिंग एन एनवायरमेंटल प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज। कहते अप्रोच ਨੂੰ क्रिटिसाइज किया जा रहा क्यों? क्योंकि ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ एनवायरमेंटल प्लेटफॉर्म ਲਈ लैक किया पिछे रह गई। किस वास्ते? क्योंकि ਇਹ क्लाइमेट चेंज ਨੂੰ इनफ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। दैट मीनस कि ਇਹਨੂੰ एडिक्वेटली एड्रैस नहीं किया गया किस चीज़ ਨੂੰ क्लाइमेट चेंज ਨੂੰ। ठीक है जी। दैन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34th to 38th। दीज आर yes no not given। देखो 34th the most favored method of development is sustainable livelihoods approach। ठीक है sustainable livelihoods approach is the most favored method। the answer is true and it's in your paragraph C। देखो इतने लास्ट लाइन लिखा होया सारे पैराग्राफ से सस्टेनेबल लिवलीहुड अप्रोच की गल कर चल रही है। तो की कह रहे हैं इट इज़ करंटली द प्रैफर्ड मैथड है। सब तो ज़्यादा प्रैफर्ड मैथड है प्रैफर्ड या मोस्ट फेवर्ड मैथड। ठीक है। सो द आंसर फॉर 34th इज यस। 35th देखो वाइल इंस्टीट्यूशनस ऑफन फॉलो डेवलपमेंट ट्रेंड्स एकेडमिक डिस्प्यूट्स आर मोर टाइमलैस। कहते चाहे इंस्टीट्यूशनस खुद डेवलपमेंट ट्रेंड्स को फॉलो कर दिया ने बट फिर की ने अकेडमिक डिस्प्यूट्स ने जड़ियाँ लड़ाइयाँ झगड़े ने आर मोर टाइमलैस। कोई टाइम नहीं उन्होंने कदे मर्जी कितने मर्जी लाइक सारा टाइम होंगे ही रहते हैं डिस्प्यूट्स झगड़े वगैरह। द आंसर इज यस एंड इट्स इन योर पैराग्राफ डी। दो there is some linearity to the trajectory of development practice with the paradigms shifting in and out of fashion। vigorous scholarly debates persist around all approaches। कहते चाहे कि उन्होंने किया उत्थे linearity है किस दी trajectory च development practice च but still किया उत्थे vigorous scholarly debate persists। vigorous बहुत ही बुरे scholarly debates लड़ाइयाँ झगड़े disputes वो की ने परसिस्ट ऑल अराउंड ऑल अप्रोचेस परसिस्ट करते हैं रहते ही ने अराउंड ऑल अप्रोचेस सारे किते। ठीक है सेम गल इत्थे की है कि चाहे उन्होंने डेवलपमेंट ट्रेंड्स फॉलो कर ले बट स्टिल की है एकेडमिक डिस्प्यूट्स आर मोर टाइमलैस। सो द आंसर फॉर 35th इज यस। 36th इज नॉट गिवन। 37 देखो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस पॉवर्टी विदाउट एन एक्सप्लिसिट डेवलपमेंट पॉलिसी। कहते डेवलपमेंट पॉलिसी तो बिना पॉवर्टी को रिड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं। द आंसर फॉर 37th इज नो एंड इट्स इन योर पैराग्राफ डी। देखो मैनी कंट्रीज दैट हैव फोकस्ड एक्सप्लिसिटली ऑन ग्रोथ हैव मैनेज्ड टू मेक कंसीडरेबल इनरोड्स इनटू रिड्यूसिंग पॉवर्टी इवन इन द एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। कहते मैनी कंट्रीज जिन्होंने सिर्फ एक्सप्लिसिटली ज़्यादा ध्यान किते दिता ग्रोथ ते दिता ऑन ग्रोथ वो की ने मतलब उन्होंने की किया कंसीडरेबली करती पॉवर्टी रिड्यूस करती। दैट मीनस पॉवर्टी तो छुटकारा पा लिया चाहे कि उन्होंने कोल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं सीगे। दैट मीनस अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं भी है तो भी की है पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है। बट इत्थे की कह रहे हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस पॉवर्टी विदाउट डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है वे तो हो ही नहीं सकती। सो द आंसर फॉर इज नो। 38th देखो द ग्रोथ मॉडल टेक्स सम अथॉरिटी अवे फ्रॉम लोकल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिहड़ा ग्रोथ मॉडल है जिहड़ियां लोकल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हां तो अथॉरिटी ले लैंदा मतलब उन्होंने कोई अथॉरिटी नहीं खुद डिसीजन बनाने। द आंसर फॉर 38th इज यस एंड इट्स इन योर पैराग्राफ ई। देखो दिस the growth model also suffer from an undemocratic and technocratic if not autocratic method underdeveloped countries frequently make policy decisions। कहते जो अंडरडेवलप कंट्रीज़ ने फ्रीकुएंटली ऐसे पॉलिसी डिसीजन बनाते हैं जोड़े कंसलटेशन पर बेस्ड होंगे ने। कंसलटेशन किन्हां वैसटर्न इकनॉमिक्स नाल ते इंस्टीट्यूशनस नाल। ठीक है दिस डिजॉल्व्स द ऑटोनॉमी ऑफ कम्यूनिटी टू मेक देयर ओन डिसीजन। जी कम्यूनिटीज़ की ऑटोनॉमी उन्होंने लाइक मर्जी उन्होंने हक है भी असं आपके डिसीजन आप बनाने ने वो तो डिजॉल्व ही हो गया खत्म ही हो गया। ठीक है दैट मीनस की उन्होंने को अथॉरिटी रही उन्हें डिसीजन बनाने क्योंकि कंसलटेशन तो वैसटर्न इकनॉमिक्स नाल हो रही है। सो द आंसर फॉर 38th इज यस क्योंकि क्वेश्चन भी यही कह रहे हैं। 39th देखो इस दसना कि किहड़ियां दो स्टेटमेंट सही है। द आंसर इज बी एंड ई। आंसर ने दे बी एंड ई। देखो जिहड़ा अपना हैगा बी ऑप्शन की कह रही आ कहते इट इज़ प्रैफरेबल नॉट टू थिंक अबाउट डेवलपमेंट इन रिजिड स्ट्रक्चर टर्म्स। भी रिजिड स्ट्रिक्टली ना इस बारे सोचो स्ट्रक्चर टर्म्स भी ये चीज़ प्रैफर की जाती है। इत्थे भी ये गल कही गई है इट इज़ फॉली टू कमिट आवरसेल्व्स टू अ स्ट्रिक्टली डिफाइंड सिस्टमैटिक प्रोग्राम।
सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रिक्टली डिफाइंड, रिजिड। फॉली, मिसटेक, एक मिसटेक होगी कि टू कमिट आर सेल्फ की करना, रिजिड ते स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨਾਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਨਾਟ ਟੂ ਥਿੰਕ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਊਗੀ। ਰਿਜਿਡਲੀ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਸਟਰਕਚਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਈ ਦੇਖੋ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਸ਼ੁੱਡ ਓਨਲੀ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਨਸ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਟ ਐਨ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਫ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਟੂ ਇਗਨੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਾਈਲ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਟੂ ਮੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹਾਊਐਵਰ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂਵ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਸੀਇੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਰੋਥ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਟੋਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਬਾਊਟ ਪੀਪਲ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਵਨ ਟੂਲ ਆਊਟ ਆਫ ਮੈਨੀ ਦੈਟ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਅਸ ਅਲੋਂਗ ਦ ਵੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਟ ਅਸਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਸ਼ੁਡ ਓਨਲੀ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ means for development and not an end point. So this is the end of your reading. Thank you.